Okay. I'll start sharing my PPT. Is it visible? Yes, ma'am. Or you can just maybe text in the chat box. Okay. Okay, okay. I'll start. Thank you so much for responding. Just just give me 1 minute. I'm audible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Like it's fine if you don't address me as ma'am. I'm just a senior who is trying to help out. So, good evening, everyone. Um, I welcome you all to the guidance session on NORCET. So I'll start by introducing myself. Okay, so few of you, I think your names are familiar. Maybe you already know me. My name is Miss Margo Kena. I have completed my BSc Nursing from College of Nursing, Nigrim, Shillong. Thereafter, for a period of 1 year, I was working as a nursing tutor at Zion Institute of Nursing, which is a nursing college, which is in New Delhi. Then I went for my master's, and my specialty is psychiatric nursing, and I completed my psychiatric nursing from Lokopriya Gopinath Bordole Regional Institute of Mental Health, which is in Tezpur. Then, for a small period of time, I was also working as assistant professor at Arunachal University of Studies, that is in Namsai. And from last year, August 2025 till date, I'm working as a nursing officer at AIMS Guwahati. And apart from that, my achievements include All India Rank 1 in ST category in Zipmer MSc Nursing Entrance Examination in the year 2022. Then I was also able to secure All India Rank 3 in LGBR IMH MSc Nursing Entrance Examination in the year 2022. So that's all about me, a brief introduction. And many of you who are not familiar with me, you might be thinking, who is she, कौन है ये, and why she's doing what she's doing. So I would like to share my personal story. When I started preparing for this MSc nursing entrance exam and later on for NORCET also, I was looking for a senior, I was looking for a familiar face, someone who is from Arunachal, someone who has already walked the path I'm planning to walk on, and someone who can guide me. But to be honest, I couldn't find anyone who is from Arunachal. Of course, I had my friends and seniors who were working in the premier institute all over India, but they were not from Arunachal, so it was not relatable for me. So that part like it was missing in my journey. So now that I'm in a position where I can be, someone's familiar face, someone can look up to me and think, "Arey, ye bhi to Arunachali hai. If she can do it, I can also do it." So I wanted to be that face for the aspirants upcoming, like my juniors and my fellow friends, and also my students who have seen me in Zion and AUS. So that's why I wanted to do this. That is first thing. Second reason for doing this guidance session is because of the current scenario in Arunachal. We are all well aware कि Arunachal में तो we don't have much opportunity. अच्छे से recruitment process भी नहीं होता है. Like all those issues are there. Opportunity is lacking. At the same time, I know that Arunachalis are very smart, but kahin pe there is guidance ka lacking is there, and at the same time we don't have mentorship is also lacking. So I thought with of course I'm not expert, but with whatever experience that I have, so I feel like I'm not the best but the right person to guide you through my experience in your nursing career and in your journey. So that's all about the introduction part. So we will move on to today's topic, the entire guidance part. तो ये जो पिक्चर है, दिस इज फ्रॉम द सर्वे दैट आई डिड. आप लोग को मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड फॉर्म, आई थिंक 150-40 समथिंग आई हैव रिसीव्ड. तो उसमें से आई फिगर्ड आउट कि मोस्ट ऑफ यू वांट टू नो रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो वांट टू नो अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि नॉर्सिक के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए.
am I audible? See, if you're not able to hear me, just unmute yourself and then you just let me know, okay? कि ma'am, yeah, दी सुनाई नहीं दे रहा है, like that, so that I can just continue. क्योंकि flow में I will not know कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना. So I will just continue. So ठीक है ना? Everything you can hear me, right? Yes, Okay. ma'am. Okay, thank you. So this is the survey. So based on this survey only, I have prepared all my PPT. So इसके around ही we will discuss and talk. And in the last part, I will keep it open for discussion. Whatever I have not included in the slide, उसको हम लोग discuss करेंगे. Whatever your like personal doubts are, maybe I have missed some point, तो उसको हम लोग last में discuss करेंगे. Okay. So starting with what is NORCET? So NORCET is basically Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test. It's an exam, national level competitive exam, which is conducted by All India Institute of Medical Sciences for recruitment of nursing officer in AIMS and other premier central government hospital across India. तो ऐसा नहीं है कि NORCET दे के आप बस AIMS में जाओगे. There are many AIMS, but apart from AIMS, हर साल कुछ ना कुछ जो प्रीमियर हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल सफदरजंग, जिपमर, निक्रिम्स, रिम्स, ये लोग भी नॉर्सेट के साथ जुड़ जाते हैं. लाइक बाय गिविंग नॉर्सेट यू कैन गिव गो टू दिस इंस्टीट्यूट एज वेल अपार्ट फ्रॉम एम्स. तो दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड. Next, eligibility criteria. So in the eligibility criteria, simply you will have to have if you have BSc nursing degree, या फिर post BSc, या फिर GNM. But with GNM, the condition is that you should have minimum of 2 years of experience in a minimum 50 bedded hospital. So if someone comes to me and say कि दी मैंने तो GNM किया है, but 2 साल से I was working in some private clinic में मैं काम कर रही थी, तो am I eligible? So the answer is no, because the criteria clearly says कि minimum 50 bedded hospital में आपको काम करना होगा, then only you are eligible if you are GNM. But for BSc, post BSc and MSc, you do not need such experience. And registered आपके पास में you should have the license, आप registered nurse होना पड़ेगा to give the exam. So I hope this is clear, this part, what is NORCET and what is the eligibility criteria. ठीक है ना? So we will move on to next slide. Okay, now we will talk about the NORCET exam pattern, selection process and syllabus. So first, my PPTs are very small, I have to zoom in. So सबसे पहला stage is, see, NORCET के लिए there are 2 stages, okay? Mainly first is stage 1, that is your prelims. Stage 2 is your mains. उसके बाद में based on the mains आपको allocation मिल जाएगा. So we will come to that. First understand these 2 stages. First is your stage 1, which is also known as prelims. तो prelims में क्या होता है basically? प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम. मतलब प्रीलिम्स की बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड नहीं होगा. प्रीलिम्स में आपको बस क्वालिफाई करना है सो दैट यू कैन अपीयर फॉर मेंस. एंड मेंस इज योर फाइनल राउंड, जिसमें मेंस में आपका जो भी रैंक होगा बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द एम्स, व्हाटएवर एम्स यू वांट. तो फर्स्टली प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रीलिम्स में बेसिकली 100 क्वेश्चन होगा एंड आउट ऑफ विच 80 क्वेश्चन विल बी नर्सिंग पार्ट एंड 20 विल बी नॉन नर्सिंग पार्ट. तो 80 जो क्वेश्चन है वो पूरा नर्सिंग का जितना फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टू योर फाइनल ईयर आप बीएससी में जेएनएम में जो भी पढ़ते हो वो सबसे जो नर्सिंग पार्ट है दैट विल कम इन योर 80 क्वेश्चंस. एंड 20 क्वेश्चंस में आपका बेसिकली इंग्लिश, जीके, जनरल एप्टीट्यूड वो सब रहेगा 20 मार्क्स का. And time you will get 90 minutes and negative marking is also there. अगर wrong करोगे तो 1/3 1 mark का 1/3 चला जाएगा. तो for just इतना ही समझो कि अगर 3 गलती किया तो almost आपका 1 mark चला जाएगा. And next, I think this is understood. Okay. उसके बाद में once you qualify prelims is just qualifying, मैंने जैसा बोला है. तो based on the cutoff, let's say for example suppose ST का cutoff हुआ 75, तो someone who scored 78 वो भी मेंस दे पाएगा. For example, my percentile was, मेरा prelims में 95 percentile था, तो I am also qualified, but at the same time जिसने 78 score किया है she is also qualified to appear for mains. तो उसमें कुछ ranking वगैरह मैटर नहीं करता, आपको बस जो कट ऑफ है आपका उससे ऊपर स्कोर करना है. तो आई होप इट्स अंडरस्टूड. उसके बाद में वंस आप कट ऑफ से ऊपर आए हैं, स्टेज 1 में आप क्वालिफाई हो गया प्रीलिम्स में, देन यू विल अपीयर फॉर योर स्टेज 2, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मेंस एग्जामिनेशन. तो मेंस में क्या होता है? बेसिकली देयर इज 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स का होगा एंड नॉन नर्सिंग पार्ट इसमें नहीं है. ऑल द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर नर्सिंग नॉलेज ओनली एंड यू विल गेट 180 मिनट्स इक्विवेलेंट टू 3 आवर्स. आपको 3 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है.
एंड बेस्ड ऑन आपका मेंस का मार्क ही डिटरमाइन करेगा कि आपको कौन सा एम्स मिलेगा. तो बेस्ड ऑन योर रैंकिंग इन द मेंस एग्जाम उसके हिसाब से आपको एलोकेशन होगा. नाउ वंस मेंस का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट इज योर इंस्टीट्यूट एलोकेशन. दिस पार्ट इंस्टीट्यूट एलोकेशन मतलब आपको कौन सा एम्स में जाना है. सी नॉर्सेट इज लाइक आई सेड, नॉर्सेट इज फॉर ऑल द एम्स एंड अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट एज वेल. तो आप क्या करोगे उसमें अपना चॉइस फिलअप करोगे. आपको चॉइस मिलेगा. सपोज आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया, देन यू विल स्टार्ट फिलिंग योर चॉइस. फॉर एग्जांपल मुझे घर के पास ही रहना था, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज एम्स गुवाहाटी, तो मैंने एम्स गुवाहाटी को नंबर 1 में दिया. सेकंड वाज कैफिम्स दिल्ली, थर्ड वाज एम्स दिल्ली. तो ऐसे ऐसे करके बेस्ड ऑन वेरेवर यू वांट टू गो. फोर्थ वाज एम्स भोपाल और एम्स भुवनेश्वर, समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज समथिंग, वो मेरा मतलब प्रेफरेंस लिस्ट ऐसा था, मैं आपको बता रही हूँ. जस्ट लाइक दैट यू कैन पुट योर ओन इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस लिस्ट. तो बेस्ड ऑन योर रैंक, सपोज 2 आदमी को एम्स गुवाहाटी चाहिए, मुझे भी एम्स गुवाहाटी चाहिए, आपको भी एम्स गुवाहाटी चाहिए, एंड योर रैंक इज हायर देन मी, और सीट वहां पे सिर्फ एक ही है. तो क्या होगा, जिसका रैंक अच्छा है उसको एम्स गुवाहाटी मिल जाएगा, आपको आपका सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा. तो दैट्स हाउ इंस्टीट्यूट एलोकेशन इज. तो इसलिए अगर आपको अपना पसंद वाला एम्स चाहिए, विच मीन्स यू हैव टू हैव ए गुड रैंक, जो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आपको जाना है तो. So after that, once institute allocation is done, next is your document verification. Document verification में basically आपका whatever class 10 का 12 का basic documents जो भी है आपका, अगर आपने BSc किया है तो BSc का, JNM किया है तो JNM का, अगर JNM किया है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा. ऑल दोज जो बेसिक हमारा नर्सिंग का डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह अपलोड करना पड़ेगा. देन अपलोड के साथ साथ जो इंस्टीट्यूट आपको एलोकेट हुआ है वहां जाके एक फाइनल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा. आप ऑनलाइन में भी अपलोड करोगे बट फिजिकल वाला भी होगा. उसके बाद में नेक्स्ट इज लास्ट इज योर अपॉइंटमेंट. आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, देन यू आर नर्सिंग, लाइक यू विल बी नर्सिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस. सिलेबस तो देखो मैंने जैसा बोला है, पूरा आपका फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सब कुछ आता है. बट डज दैट मीन सब कुछ आएगा? नो, दैट इज रॉन्ग अप्रोच. तो बेसिकली आई हैव डिवाइडेड द सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स ताकि आपको समझ में आए. मेजर एंड माइनर. क्या होता है ना कि मेजर जो सब्जेक्ट्स है यहाँ से ही मैक्सिमम पोर्शन आता है. फ्रॉम माइनर सब्जेक्ट हार्डली, मेरे टाइम पे तो देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, एक भी क्वेश्चन नहीं था. रिसर्च से हार्डली किसी कोना में एक क्वेश्चन था. तो बेस्ड ऑन दैट I have divided the syllabus into major subjects and minor subjects. My voice is audible, right? Because you guys are not speaking. It's like I'm talking to wall. Okay, okay. So I'll continue. Okay, okay, I'll continue. So I've divided the syllabus into major and minor part. Major part में आपका major subjects nursing foundation, very important, medical surgical nurses, या आजकल तो adult health nursing बोलते हैं. Then there is child health nursing. Then we have obs and gynae. Then we have community health nursing, and then we have psychiatry. तो ये 6 major subject. These are called major subject because they hold the most weightage. Majority of the questions यहाँ से ही आएगा. And minor subjects में you can say your research, nursing administration, pharmacology, nutrition, anatomy, physiology. ये जो छोटा छोटा subjects जो है, this will come in your minor subject. इससे थोड़ा कम ही आता है questions. So this is just for you to understand कि कैसा like what should be your approach. So I hope you're clear till here. Just give me one thumbs up. Okay, so we will move on to next slide. Okay. तो नाउ कमिंग टू योर फेवरेट क्वेश्चन. सबका सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है? दी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करेगा. वेयर शुड आई स्टार्ट? यहाँ ये सबसे सबका मतलब मेजोरिटी का यही कंफ्यूजन होता है कि सिलेबस तो पता है, नॉर्सेट के बारे में भी सुना है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है वो समझ में नहीं आता है. तो जिसने भी आज तक मुझे अप्रोच किया, द फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज, सी मैं एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू अ बैटलफील्ड. इफ यू डोंट नो हु योर ओपोनेंट इज, ओपोनेंट का क्या स्ट्रेटेजी है, उसको बिना जाने इफ यू गो इन अ बैटलफील्ड, क्या होगा? यू विल गेट किल्ड, है ना? तो what mistakes people do is, वो लोग क्या करते हैं, they will simply join some coaching. friends से पूछ के तुम क्या कर रहे थे, कि ओ ज्वाइन किया है, ठीक है मैं भी कोचिंग ज्वाइन करूंगी. they will join some coaching, buy multiple books, जो जो सुना है, टारगेट हाई, ये वो सारा बुक्स you will buy. उसके बाद में ऐसे blindly you go into the coaching में जाते हो. then that my friend is perfect recipe for failure. उससे आप फेल ही होगे. सो प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो योर हाफ बैटल तो आप वहीं पे जीत गया.
तो विच इज वाई आई कीप ऑन सेइंग कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्सिट, क्योंकि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। देखो आप पूरा फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर का सिलेबस को इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इन 3-4 मतलब पूरा पढ़ने जाओगे, कोई कोई पूछते हैं दी पूरा पढ़ना है क्या? पूरा पढ़ने से इट्स गोइंग टू टेक यू 2 to 3 years, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको बस हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है। तो वो कैसा करना है? व्हाट शुड बी योर अप्रोच of where should I start? इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर इज, firstly you have to go to previous year questions, PYQ जो बोलते हैं। Very important. Why? क्योंकि rather than just joining some random coaching and studying from the books, पहले आप समझो कि वो एग्जाम का डिमांड क्या है, नॉर्सिट आपसे क्या पूछता है। You should understand that first. उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा नॉर्सिट आपको क्या पूछता है या इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है। हम सबका एंड मेनी पीपल आर स्केप्टिकल ना कि हमसे हो पाएगा कि नहीं। आई थिंक इट्स वेरी टफ। हाउ डू यू नो इट्स टफ जब कि आपने ट्राई ही नहीं किया? तो हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है? बाय सॉल्विंग योर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि PYQ कहाँ से मिलेगा दी? तो PYQ मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रीली वो लोग यूट्यूब में डाल देते हैं। इफ यू टाइप की नॉर्सिट 9 प्रीलिम्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर, पूरा आ जाता है, मेमोरी बेस्ड आता है, 80 to 90% करेक्ट ही होता है। तो फ्रॉम यूट्यूब फ्रीली यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें आपको जाना है, फर्स्टली आप बैठो, कॉपी निकलो, सॉल्व करके देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन, नॉर्सिट 9 का या नॉर्सिट 8 का सॉल्व करके देखो, बैठो आपको कितना आ रहा है। एंड 80% भी आपका रॉन्ग होने से भी डजंट मैटर। इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम आपसे क्या पूछता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट एक बार बैठ के कॉपी निकालो, बैठो और करके देखो, सॉल्व करके देखो। देन एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर प्लेइंग दैट वीडियो ना, आप क्या करो कि एक क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल लेबर का क्वेश्चन आया है, तो यू विल नो कि अच्छा ये ओबीजी से पूछा है। फॉर एग्जांपल ईसीजी का क्वेश्चन आ गया, यू विल नो कि अच्छा ये मैथ सर्च से पूछ रहा है। सो लाइक दैट इफ यू सॉल्व 2-3 प्रीलिम्स का पेपर ना, नॉर्सिट 8, 9, 10, 3 प्रीलिम्स का किया, 3 मेंस का किया, बाय द टाइम यू हैव डन 3-4 PYQ, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। See, the question might not repeat, but the theme will repeat. For example, burns आते रहता है, fluid and electrolyte balance very important आते रहता है। So by solving PYQ आपका क्या आपको हेल्प मिलेगा कि you will know कि कौन सा थीम बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है। उससे आपको क्या क्या पता चलेगा PYQ सॉल्व करने से? एक तो एग्जाम का लेवल पता चलेगा, दूसरा क्या पता चलेगा, क्या क्या चीज बार बार एम्स पूछ रहा है। तो उससे इट बिकम्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे तो देयर इज हायर चांस कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप बिफोर just joining any coaching or opening your book is to do previous year questions. मैं like I tend to speak a lot, थोड़ा cut short करती हूँ। I think I'm over explaining. Second point is your जब sorry while you are solving this question paper ना, PYQ जब solve कर रहे हो, you should also list down all the frequently tested topic, जो topic बार बार आ रहा है। ECG very common, हर साल आता है ECG, shock, burn, CPR very common, fluid and electrolyte imbalance तो favorite है उन लोग का। तो दिस ऐसा करके आपको पूरा डिवाइड कर लेना है कि कौन सा पोर्शन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा? PYQ करके पता चलेगा। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड 80-20 रूल, हम लोग बोलते हैं ना कि 20% ऑफ द टॉपिक विल गिव यू द 80% ऑफ द मार्क्स। जैसे मैंने बोला है मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट तो यू शुड नॉट गिव मच टाइम टू माइनर सब्जेक्ट। तो ऐसा ही होता है टॉपिक भी। एम्स का अगर आप PYQ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेनी ऑफ द टॉपिक्स एंड पैटर्न्स इज रिपीटेड। तो 20% टॉपिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको करना है, which will give you a good rank। और उसके बाद if you have टाइम ज्यादा होगा तो फिर माइनर सब्जेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह को भी करना। उसके बाद नेक्स्ट इज योर एनालाइजिंग द वेटेज बिफोर ओपनिंग योर बुक्स। ओ अच्छा, इसको वी विल टॉक इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। बेसिकली ये मैंने आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। बेसिकली जो मेजर माइनर सब्जेक्ट उसी के रिगार्डिंग आई हैव गिवन हियर। ये मेजर सब्जेक्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है rather than giving much time on the minor subject. Next, I hope this is clear. ये हो गया था। ओके, नाउ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हम लोग का? तो ऐसा पूछते हैं ना, ठीक है दी समझ में तो आ गया कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, लेकिन उसको भी कैसा पढ़ना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अप्रोच कैसा होना है। तो फॉर समवन हु इज बिगिनिंग देयर जर्नी टुडे आई वुड से कि स्टार्ट विथ नर्सिंग फाउंडेशन।
Why? Because nursing foundation is the base. Nursing foundation, not able to see the slides. Slides visible नहीं हो रहा है क्या? Please let me know. Someone unmute मैम हो themselves. रहा है हो रहा है? मैम I don't know क्यों. माला आई थिंक इट्स विजिबल राइट, ठीक है, हो रहा है ना, ओके। तो अभी तो आप लोग को मेजर और माइनर सब्जेक्ट समझ में आ गया। तो मेजर सब्जेक्ट का कैसे अप्रोच होना है, आई विल से फर्स्ट यू हैव टू, okay, for major subject na, first we will see nursing foundation. Nursing foundation, for someone who is starting today, I will say कि nursing foundation से शुरू करो, because it's the base. It will create the base for your other subject. Foundation हर देखो हर subject में, be it your OBG, pedia or your psychiatry, हर जगह में role of a nurse is there, and role of a nurse is favorite, एम्स के लिए तो favorite है। application based question वो लोग बहुत पूछता है कि as a nurse what are you going to do अगर सपोज एक पेशेंट का सीजर हो रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन दैट यू आर गोइंग टू डू। तो वो आपको कैसा पता चलेगा, व्हेन यू स्टडी द नर्सिंग प्रोसेस इन योर नर्सिंग फाउंडेशन। तो इसीलिए नर्सिंग फाउंडेशन इज, my voice is not audible, someone is saying, I think your network is not good। बाकी को सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? यस Okay, I think for the ones for whom the slides are not visible and जिनको आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, I think आपका network is bad, I think। ठीक है, okay, so I'll just continue, okay, नहीं तो मैं distract हो रही हूँ if I see the chat box ना बार बार, I'm getting distracted, I'll just continue। तो नर्सिंग फाउंडेशन आपका बेस है, वहीं से शुरू करो, ओके। सो इट विल गिव यू द क्लियर कॉन्सेप्ट कि आगे जाके आपको रोल ऑफ ए नर्स में क्या करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, नर्सिंग फाउंडेशन से पता चलेगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम नर्सिंग फाउंडेशन इज इजी। हम लोग रोज फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक वही कर रहे हैं, BMW, वाइटल साइंस, नर्सिंग प्रोसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, पोजिशनिंग। सो दिस आर इजी टू अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम स्कोरिंग एज वेल। तो ऐसा वाला जो इजी है, स्कोरिंग है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। योर फाउंडेशन शुड बी वेरी क्लियर। तो फाउंडेशन में कुछ कुछ टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आई हैव गिवन हियर, बट जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन हियर ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ट्रेंड चेंज होता है। रिमेंबर दैट नॉट से थर्ड साल कुछ कुछ ट्रेंड चेंज होता है, किसी साल साइकेट्री ज्यादा आएगा, किसी साल फाउंडेशन ज्यादा आएगा। सो द ट्रेंड चेंजेस, आई हैव जस्ट टेकन आउट जो मुझे मेरा एनालिसिस से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा रिपीटेडली आया है, वो सब मैंने यहाँ पे डाला है। सो डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली, ओके। तो पहले फाउंडेशन करो। वंस योर फाउंडेशन इज डन, आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा, फाउंडेशन इज इजी, आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देन यू गो टू योर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। वाई एडल्ट हेल्थ नर्सिंग? बिकॉज इट इज वास्ट, एक तो वो वास्ट है, तो बिकॉज इट इज वास्ट वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, वेटेज उसका ज्यादा हो जाता है। तो what should be the approach for medical health nursing? तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को सिस्टम वाइज पढ़ना है। यू कैन नॉट सी, इट्स वेरी वास्ट, तो इसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। सो PYQ सॉल्व करने से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ECG उन लोग का फेवरेट है, आते रहता है। तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली इफ यू सी ऑप्टल, आई का टॉपिक कभी कोई कोई एग्जाम में तो आता भी नहीं है, या ENT का टॉपिक, ईयर का डिजीज कंडीशन नहीं आता है। तो लाइकवाइज आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आपको डिवाइड करना है कि कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रो, ऐसा करके आपको एक डिवीजन बना लेना है बेस्ड ऑन योर PYQ। तो ऐसा करके आपको अप्रोच करना है for the medical surgical nursing and system maybe, for example, if I say cardiovascular system also, not everything is important, same with respiratory system। आप सब disease condition को equally importance दोगे तो नहीं होगा। For example, tuberculosis बहुत easy है, सुनते रहता है और क्वेश्चन भी आता है, tuberculosis न्यू NTP डोसेज क्या है, चेंज जो हुआ, अपडेट्स क्या हुआ। तो tuberculosis is easy एंड क्वेश्चन आता भी है। तो रेदर देन स्टडिंग सम फैंसी डिजीज कंडीशन जो जिसका आने का चांसेस कम है, गिव योर टाइम मेजोरिटी ऑफ द टाइम टू टॉपिक जो इजी है और आता भी है। फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब COPD। तो एक सिस्टम में भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक को आप ज्यादा समय देगा। तो आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल। तो मैथ सर्च का अप्रोच ये होना है। देन अदर देन दैट मैथ सर्च में व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, सब चीज को इंटीग्रेट करके पढ़ने का कोशिश करो। ये कैसा पढ़ना है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आई विल लेट यू। दिस इज क्लियर सब्जेक्ट का अप्रोच, वी विल गो टू नेक्स्ट सब्जेक्ट।
Okay. Now is your ऑप्शन पीडिया. दिस वाज माय अप्रोच. सी दिस माइट नॉट बी द बेस्ट अप्रोच, पर हमको लगता है कि ऐसा करने से ना इट सेव्स योर टाइम. तो ओबीजी एंड पीडिया का क्या है ना, इट्स समवट रिलेटेड है कि नहीं. प्रेगनेंसी को पढ़ने के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवर हुआ, फिर बेबी हुआ, फिर बेबी का डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ा, डिजीज कंडीशन पढ़ा. सो देयर इज अ कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी होने से क्या होता है ना, एग्जाम में याद करने के लिए इजी रहता है. एंड देयर आर सो मेनी ओवरलैपिंग टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल न्यूबॉर्न केयर आपको पीडिया में भी मिलेगा, ओबीजी में भी मिलेगा. तो ऐसा टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है. उससे क्या होता है कि लाइक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. आप एक टॉपिक करेगा तो आपका 2 सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, आपका ओबीजी का पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, आपका पीडिया का भी हो रहा है. तो ओबीजी और पीडिया मैंने कंपाइल करके पढ़ा था कि ओबीजी के साथ ऐसा, ओबीजी के नेक्स्ट में ही मैंने पीडिया पढ़ा था, बिकॉज इट्स रिलेटेबल ना, थोड़ा रिलेटेड है. तो ऐसा करके दैट वाज माय अप्रोच फॉर ओबीजी एंड पीडिया. तो यहाँ पे भी बेसिकली आई हैव गिवन फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा कि लाइक रिपीटेडली आता है ना. तो ये देख लेना बाद में. आई विल शेयर द स्लाइड. That was my approach. Community. Next is your next major subject is your community. Community का approach क्या रहना है? Community में basically you have to understand कि there are two parts. Wait, just wait. कम्युनिटी का 2 पार्ट है. एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक. स्टैटिक मतलब जो फिक्स रहता है. फॉर एग्जांपल योर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या आपका डेमोग्राफिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला जो हो गया, वो सब, इम्यूनाइजेशन, वो सब फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होता है. तो स्टैटिक वाला एक पोर्शन है जिसको आप बुक से कवर कर सकते हो. देन देयर इज डायनामिक पोर्शन. डायनामिक मतलब कम्युनिटी जो नया नया हेल्थ स्कीम आता है, ये वो योजना, सो मेनी योजना एंड ऑल, इट विल लाइक इट कीप्स अपडेटिंग, है ना. तो उसको आप बुक से पढ़ने से क्या होता है कि बुक्स का आउटडेटेड हो जाता है. तो उसको मैंने बेसिकली आई हैव सर्च इट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, या यूट्यूब में वो लोग कंपाइल करके बहुत सारा फ्री वीडियोस है, वहां से मैंने पढ़ा ये स्कीम एंड ऑल ना. तो इसको भी आप पीवाईक्यू करने से पता चल जाएगा कि नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. वो आपको ही फिगर आउट, दैट इज योर होमवर्क. ओके, पीवाईक्यू करो और पता करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है. तो दैट वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइड कर पाना कि किसको, किस में ज्यादा टाइम देना है, किस में कम देना है. Next is your psychiatric nursing. See, psychiatric nursing I will make another video because my specialty is psychiatric nursing. Psychiatric nursing मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया because freshly I completed my masters in psychiatric nursing only. So for me it was easy only. But for a fresher जो अभी शुरू कर रहे हैं, उसके लिए these are some of the key topics. Therapeutic communication ना very important, आते रहते हैं. Defense mechanism every year 1 or 2 questions with examples आना ही आना है. Then some of the psychiatric drugs like clozapine, lithium, ECT, very common themes जो repeatedly आता है. तो ऐसा portions को नहीं छोड़ना है जो बार बार आ रहा है ना. And psychiatry is the unlike medical surgical nursing जो बहुत vast है, but your psychiatry is very small ना, छोटा सा subject है, इसको ज़रा time भी नहीं देना है, जल्दी खत्म करना है. And scoring also easy है, scoring है, ऐसा वालों को नहीं छोड़ना है. Okay. तो आई होप मेजर सब्जेक्ट्स का समझ में आ गया. नाउ मूविंग ऑन टू माइनर सब्जेक्ट्स. माइनर सब्जेक्ट्स में भी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई फील लाइक फार्माकोलॉजी इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एमंग द माइनर सब्जेक्ट ना, उसमें भी मुझे लगा है कि फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, रिसर्च, ये 3 थोड़ा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू योर माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. उसके कंपेयर में ये ज्यादा आता है. तो फार्माकोलॉजी को मैंने पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या है बोलने से, rather than studying pharmacology as a separate entity, एक पूरा अलग सब्जेक्ट जैसा मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि it becomes boring. All the names, metformin, insulin, haloperidol, the names are very complex, याद भी नहीं रहेगा, भूल जाएगा if you are going to study pharmacology as a subject. तो मैंने क्या किया, suppose when I say labor, क्या क्या मेडिसिन आप लोग के दिमाग में आते हैं? Someone volunteer, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा. Oxytocin. Oxytocin. वेरी गुड, वेरी इजी, ऑक्सीटोसिन आ जाते हैं, राइट. तो जस्ट लाइक दैट. तो मैंने क्या किया, फार्माकोलॉजी को rather than studying it as a different subject, मैंने क्या किया, when I was studying medical surgical nursing ना, उसमें ही मैंने combine कर दिया. For example, if I'm studying pregnancy, तो labor जब मैं like while I was studying the labor, I completed this oxytocin. Then postpartum hemorrhage के लिए not postpartum hemorrhage, yes, postpartum hemorrhage के लिए जो मेडिसिन यूज होता है. Then for your pre-eclampsia, eclampsia के लिए magnesium sulfate. ऐसा करके ना, for example, if I'm reading myocardial infarction, then and there I will complete digoxin. Digoxin उन लोगों का favorite है. तो ऐसा करके I have completed my pharmacology. Rather than studying pharmacology as a subject, disease के साथ पढ़ो, ज़्यादा easy रहता है. Diabetes पर जब when you will be studying diabetes, insulin खत्म कर देना वहीं पे.
तो याद भी रहेगा, रिटेंशन भी होगा, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, सेम विद द न्यूट्रिशन, माय अप्रोच वाज सेम। फॉर न्यूट्रिशन अलग से मैंने मेमोराइज नहीं किया। सपोज आई एम स्टडिंग ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें ही मैंने विटामिन डी, कैल्शियम का पढ़ाई कर लिया। फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी का पढ़ने का टाइम पे एनीमिया मुक्त भारत स्कीम, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कैलोरी दैट द प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर्स, वो सारा पोर्शन जो न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट है ना, बार बार आता है। एनीमिया मुक्त भारत इज ऑल्सो फेवरेट। तो वो सब मैंने उसी टाइम पे खत्म कर दिया व्हेन आई वाज स्टडिंग प्रेगनेंसी। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन, पीएम, कोशिकर मरासमस, ये सब पढ़ने के टाइम पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो सारा उसी टाइम पे मैंने पढ़ लिया। तो दिस शुड बी योर अप्रोच, ट्राई टू इंटीग्रेट एवरीथिंग। ऐसे सब्जेक्ट को ये पढ़ने के बाद, ये खत्म होने के बाद इसमें जाएगा, ऐसा नहीं। ट्राई टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, ब्रिंग इट इनटू ए सिस्टम। जितना छोटा कर पाओगे उतना करो, सो इट बिकम्स इजी। एग्जाम के समय में ना ज्यादा रिटेंशन होगा, वो ज्यादा याद आएगा। नहीं तो नर्सिंग का टॉपिक सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, सब पढ़ने जाएगा तो कहीं पे खो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है पूरा कंप्लीट करना। सो आई होप इट्स क्लियर यहाँ तक। गिव मी ए थम्स अप सो दैट वी कैन मूव नेक्स्ट। ठीक है, चलो, इफ इट्स अंडरस्टूड देन हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नाउ that was briefly about the approach. अभी हम लोग देखेंगे कि what is the extra tip that makes the biggest difference एग्जाम में। ठीक है, तो वो तो हो गया बेसिक, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। नाउ एक्स्ट्रा टिप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज योर फ्लो चार्ट एंड वन पेज नोट। तो बहुत सारा टॉपिक होता है ना नर्सिंग में। फॉर एग्जांपल कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन इजी है। सी कॉपर टी, बैरियर, कॉपर टी, कॉन्डम्स, दिस एंड दैट, बहुत सारा उसका डिवीजन है ना, तो इजी है लेकिन जल्दी भूल भी जाता है। सो ऐसा टॉपिक को क्या करना है, इफ इट्स पॉसिबल मेक अ फ्लो चार्ट। एक ही पेज में कोशिश करो कि कंपाइल करो। मेरा एक बहुत कंट्रासेप्शन मेथड का मेरा बहुत अच्छा एक फ्लो चार्ट था। सेम विद दिस क्रेनियल नर्व्स, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रॉपरली मैंने एग्जांपल बना के छोटा छोटा वो फ्लो चार्ट बना दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव माय नोट्स विद मी राइट नाउ। गुवाहाटी में, घर में नाहरलगुन में होगा। समडे इफ आई गेट टाइम आई विल शो यू लाइक हाउ माय नोट्स आर लाइक। तो ऐसा करके करो, सो दैट वो क्या होता है ना, एग्जाम में रिवीजन में बहुत मदद करता है, लास्ट मोमेंट में देखने के लिए, फ्लिप करके देखने के लिए। एंड सब चीज एक ही पेज में होने से आपका दिमाग को भी रिकॉल करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मेक while making notes ना, rather than making लंबा चौड़ा notes, try to compile it ऐसा फ्लो चार्ट, ड्राइंग, ये सब बना के उसको कोशिश कर कंपाइल करने का कोशिश करो। दैट इज वन एक्स्ट्रा टिप फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट इज फॉर्मूला एंड वैल्यू नोटबुक। इसके बारे में आई विल शेयर यू वन स्टोरी। प्रीलिम्स में मेरा, व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम नॉर्सेट 8 में, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, बर्न का आया था कि इमरजेंसी में एक पेशेंट आया, इतना इतना परसेंट, 40% बर्न हो गया है, उसका फ्लूइड कितना देना है, कैलकुलेट द फ्लूइड। तो ऐसा नहीं है कि बर्न मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, आई ऑलरेडी स्टडीड कंप्लीटेड इट, बट द प्रॉब्लम वाज मैंने रिवाइज नहीं किया। एक तो मेरा दिल में पूरा एग्जाम में द होल टाइम आई वाज लाइक, एक बार आज सुबह अगर पार्कलैंड फॉर्मूला, जो बर्न्स का फॉर्मूला को देखने से आज हम ये क्वेश्चन कर पाना था। तो वो रिग्रेट ना मेरा पास में आज तक भी आए, लाइक दैट इज हॉरिबल। उसको हम सोचते रहते कि एक बार वो पार्किंग फॉर्मूला देखने से वो क्वेश्चन को हम कर सकना था। तो उससे मैंने क्या एनालिसिस किया है कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग ना, आप अभी जब पढ़ना शुरू करोगे नेक्स्ट नोट सेट के लिए, तो जितना भी जो फॉर्मूला होता है, बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा आपको, पार्कलैंड फॉर्मूला, देन एबीजी का वैल्यू, द्रव कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ऐसे छोटा छोटा फॉर्मूला स्टार्टिंग फ्रॉम योर फाउंडेशन हर सब्जेक्ट में मिलेगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला नोटबुक बना दो, वहां पे सब कुछ लिख के जाओ, जिसको आप एग्जाम से पहले, जैसे कि कल एग्जाम है ना, कल सुबह एग्जाम है, तो आज रात एक बार गो थ्रू करना है, सो दैट कल अगर वो आएगा तो यू विल बी एबल टू डू इट, रिकॉल कर पाएगा। तो दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड यू ऑल शुड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। तो वो दिन अगर ये फॉर्मूला देख के जाने से गलती नहीं होना था। एंड फॉर्मूला ऐसा होता है ना कि आई डिड नॉट मेक एनी फॉर्मूला नोटबुक, तो मेरा तो अलग अलग हर फॉर्मूला, एक फाउंडेशन का दूसरा कॉपी है, इसका वो कॉपी, तो कहाँ ढूंढते रहेगा ना। तो उसका एक छोटा सा नोटबुक बनाने से इट बिकम्स वेरी इजी। Third is your revision cycle. Revision is very important. Okay, मेरे पास तो I didn't have much time for revision, तो I didn't do. But since if you guys are starting, तो revision बहुत जरूरी है, because revise नहीं करने से there's no use. Burn मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, but just because revision नहीं था, exam में नहीं कर पाया question, तो it comes down to nothing अगर आप revise नहीं कर पाया तो रिवीजन के लिए फर्स्ट रिवीजन, फिर उसको और छोटा करो और छोटा करो, लास्ट में फाइनल में इफ यू हैव टाइम ना, छोटा सा एक नोटबुक बनाओ जिसमें एकदम की पॉइंट जिसको आप भूलते हैं या एकदम जरूरी लगता है, उसका नोटबुक बनाओ। बट आई ऑनेस्टली आई डिडंट हैव दैट मच टाइम, तो मैंने तो ये नहीं किया था, बट यू शुड टू। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो अभी।
नेक्स्ट इज स्टडी प्लस एमसीक्यू टुगेदर। तो ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि दी कैसे करेगा ना, पहले पढ़ाई कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर एमसीक्यू करने से सही रहेगा क्या? द आंसर इज बिग नो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होता है, लाइक कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ओ ये तो हमको समझ में आ गया, बट व्हेन यू डू एमसीक्यू आपको समझ में आएगा कि एमसीक्यू पूरा घुमा के देता है ना। तो आपका एनालिटिकल पावर, जो क्रिटिकल थिंकिंग दैट वी से, इट विल ओनली इंक्रीज वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू। एंड एग्जाम में तो आपको इट्स नॉट सब्जेक्टिव, राइट? आपको नोट्स में इट्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आपको तो एमसीक्यू ही करना है। तो प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना यू बिकम मोर एफिशिएंट। तो ऐसा मत करो कि पहले पूरा कवर करेगा फिर जाएगा। एक टॉपिक पढ़ा है, देन एंड देयर उसका जितना भी एमसीक्यू आपसे हो पा रहा है, 10 15 20 जो भी, लाइक एज पर योर कैपेसिटी एंड योर टाइमिंग कर लेना। देन एंड देयर 2 3 उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आगे नेक्स्ट टॉपिक में जाओ, सो दैट टू मेक श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और एमसीक्यू सॉल्व करने से ही पता चलेगा कि अरे इसको तो हम लगा था कि समझ में आया, पर समझ में नहीं आया, शायद क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पा रहे। देन यू विल गो बैक एंड स्टडी अगेन। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो बहुत और स्ट्रांग हो जाता है। दैट इज वन टिप मेरे साइड से। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माई साइड वुड बी डोंट लूज इजी मार्क। मतलब क्या होता है ना, वी फोकस, हम लोग एग्जाम के समय में पैनिक हो जाते हैं। फ्रेंड्स को कॉल करेगा, पूछेगा तुम इसको पढ़ लिया क्या, तुम उसको पढ़ लिया क्या, देन पैनिक हो जाता है, अरे ये तो हम पढ़ा ही नहीं। देन यू विल गो एंड जंप हियर, स्पेशली जब एग्जाम सामने हो जाते हैं ना, वी गेट वेरी एंशियस एंड वी विल जंप फ्रॉम हियर एंड देयर। तो ऐसा नहीं करना है। See, some of, and in doing so, while we are focusing on these difficult topics and difficult subjects which will take 2 hours to understand, for example थोड़ा fancy वाला एक disease condition, for example DIC disseminated, क्या था अभी हमको पूरा भी याद नहीं आ रहा। ऐसा फैंसी टॉपिक को आप पढ़ने से इट विल टेक टाइम ऑल्सो एंड देयर इज अ हाई चांस कि वो आएगा भी नहीं। तो फिर आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन दिस फैंसी टॉपिक एंड फैंसी सब्जेक्ट, क्या करना है आपको, जो इजी है, कॉन्ट्रासेप्शन वेरी इजी, लेकिन आते रहते हैं, सहेली, कॉपर्टी वगैरह, वेरी इजी, याद भी होता है लेकिन जल्दी भूल भी जाएगा। तो ऐसा टॉपिक को, इम्यूनाइजेशन आएगा ही आएगा। तो उसको क्या फायदा ना, इफ यू नो ए वेरी फैंसी टॉपिक, लेकिन आपको पता नहीं कि कैथेटर एंड यूरिन बैग को कौन सा डस्टबिन में डिस्पोज करना है। तो दिस इज बेसिक। तो क्या होता है ना, एग्जाम में व्हेन यू गो, पीपल विल कम प्रिपेयर्ड। उन लोगों को तो बेसिक पूरा क्लियर होता है, स्पेशली द पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड। उन लोगों का ना द मेमोराइजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों का ये सब क्लियर होता है। तो बेसिक उन लोगों को पता होगा, एंड आपको बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, फिर देयर इज नो यूज ना। कंपटीशन बेसिक क्वेश्चन में ही ज्यादा होता है। तो वही मेरा सजेशन है कि रदर देन फोकसिंग ऑन फैंसी थिंग्स, जो इजी है, आता है, ऐसा वाला मैं अपना फोकस को रखूं। लास्ट इज योर मिस्टेक नोटबुक। इसके लिए भी मेरे पास तो टाइम नहीं था, बट पीपल डू इट, माय फ्रेंड्स हैव डन इट, मेनी ऑफ देम, जिसका रैंक अच्छा अच्छा है, गुड रैंक होल्डर्स, दे हैव डन इट। जस्ट okay. Okay, I'm running out of time. It's already 40 minutes. I'll try to compile. अभी ज्यादा नहीं बच गया, थोड़ा सा ही है। सो मिस्टेक नोटबुक भी, अगर इफ यू हैव टाइम ना, बना लेना, जो चीज को आप रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हैं। सी, जो मेरे लिए डिफिकल्ट है वो आपके लिए इजी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ईसीजी इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ईसीजी हमको समझ में नहीं आता है, तो ईसीजी को, इवन इफ इट टुक टाइम, ईसीजी को हम 2 3 घंटा उनसे भी बैठ के हम सीखा है, उसका अच्छे से नोट्स बनाए, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, और वहां से क्वेश्चन आता है। तो सेम कैन बी फॉर यू ना, जो मेरे लिए इजी है आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो मेरे लिए इजी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, मेरे लिए कौन सा डिफिकल्ट है उसका एक मिस्टेक नोटबुक बनाना, जिसको आप लास्ट प्रिपरेशन का टाइम भी देखोगे, 1 week बिफोर द एग्जाम। तो आई थिंक दिस इज डन। आई विल नॉट स्ट्रेच दिस। नेक्स्ट इज योर, बहुत लंबा हो रहा है, जस्ट ट्राई टू कट डाउन फ्यू थिंग्स। बेस्ट बुक एंड रिसोर्सेज फॉर नर्सिंग। तो बुक के बारे में ना, for someone who is starting now, I would say मिशन परिचारिका is best अभी के लिए, ऐसा अभी का सिनेरियो में। उसमें अच्छे से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, उसमें एमसीक्यू भी है, इट हैज कॉन्सेप्ट्स आल्सो। तो वो अभी, इफ यू आर समवन जो अभी तक बुक नहीं खरीदा, तो मिशन परिचारिका खरीदो, माय सजेशन। टारगेट हाई, आई पर्सनली यूज टारगेट हाई, दिस इज द ओजी सबसे पहले वाला बुक ना। तो टारगेट हाई, बट अभी टारगेट हाई का क्वेश्चंस जो है इट्स बिकमिंग इररिलेवेंट, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। तो अभी नया नया टॉपिक, मतलब नया नया तरीका से नॉर्सेट जो एग्जाम फ्रेम कर रहे हैं, तो टारगेट हाई इज नॉट सो रेलेवेंट अभी के लिए, अभी का सिनेरियो में। एंड वहाँ पे जो थ्योरी है ना, इट्स वेरी लिमिटेड, बहुत छोटा सा है। तो आपका, मेरा
कॉन्सेप्ट क्लियर था बीएससी के टाइम से, सो मेरे लिए टारगेट हाई वाज फाइन, बस रिवीजन के लिए मैंने टारगेट हाई यूज किया। बट फॉर समवन, अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट इज नॉट सो क्लियर, देन टारगेट हाई इज नॉट अ गुड बुक फॉर यू। मिशन परिचारिका बेटर है। Then PR Yadav का रेटिंग 4 नहीं है, PR Yadav I will give 2. PR Yadav is not my personal favorite. अच्छा बुक है, लैंग्वेज इज इजी, बट ब्लैक एंड व्हाइट में है। आई डोंट लाइक इट, आई लाइक कलरफुल, बोर हो जाते हैं PR यादव पढ़ने से। बट PR यादव का जो पार्ट 2 है ना, जिसमें MCQ क्वेश्चंस है, दैट पोर्शन इज गुड। देन मेनी ऑफ देम दे आल्सो फॉलो सॉन्डर्स। सॉन्डर्स भी सबका फेवरेट है, लेकिन सॉन्डर्स जिसके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो सॉन्डर्स में मत जाओ। सॉन्डर्स इज वेरी गुड फॉर कंसेप्चुअल बिल्डिंग। किताब मत खरीदना, इसका PDF भी आ जाता है। इफ आई हैव आई विल शेयर, लेट्स सी लेटर ऑन। इसमें ना कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, लाइक बहुत एंड प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सबसे अच्छा सॉन्डर्स में ही दिया हुआ है। तो अगर आपके पास में टाइम है, बट वो नोट से फोकस नहीं है ना, एनक्लेक्स इज अनदर एग्जामिनेशन, तो इसलिए उसमें आपको सेलेक्टिवली पढ़ना होगा, सब कुछ नहीं पढ़ना है। बट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सॉन्डर्स इज वेरी गुड, तो गुड 4.5। हाईएस्ट तो मिशन परिचारिका 5, दिस सॉन्डर्स इज 4.5, then I will go for target high. PR Yadav, not my personal favorite. I will give it 2. So that's all about book. Okay. Okay. Next is coaching जरूरी है क्या? Many of you ask me. तो see, coaching is not compulsory. हाँ, many of you, I have not done coaching. मैंने भी क्लियर किया है ना. So many of my friends have not done coaching. सेल्फ स्टडी किया है, which is why I'm saying कि प्लानिंग important है. आपको समझना है कि एग्जाम क्या पूछेगा, कैसा पढ़ना है. Then I think coaching important नहीं है इतना. कोचिंग कब इम्पोर्टेंट है? इफ यू हैव नो आइडिया, बट अभी तो आपको गाइडेंस में दे ही रही हो ना. सो कोचिंग कब हेल्प करेगा? इफ यू आर समवन जो थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है, लाइक यू आर लेजी, खुद से पढ़ना बैठने से एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा, ऐसा थोड़ा सा होने से, देन कोचिंग में क्या होता है कि स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होते हैं, प्लस आप पैसा दे रहे हो तो यू बिकम ऑब्लाइज ना कि अरे इतना पैसा खर्चा कर दे तो पढ़ ही लेते हैं. तो दैट थिंग इज देयर विद कोचिंग. ओके, लेकिन आई डोंट थिंक, लाइक इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट थिंक कोचिंग मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सो मेनी फ्री मटेरियल्स आर अवेलेबल इन यूट्यूब, तो वो इनफ होता है बुक्स के साथ. अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो यूट्यूब में है फ्रीली. So that is my answer for this. Next is negative marking. See, negative marking is another very important thing. I will just give one example, okay? I'm running out of time. नेगेटिव मार्किंग क्यों मैटर करता है? से यहाँ पे देखो, 1 person हैज स्कोर्ड 105, दोनों ऑलमोस्ट, दोनों ही पढ़ाई में ऑलमोस्ट सेम है, एंड दोनों का प्रिपरेशन भी सेम है, साथ में पढ़ाई किया, से दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, साथ में पढ़ाई किया, साथ में कोचिंग किया, दोनों का स्ट्रेटेजी सेम ही था. बट पर्सन ए जो नंबर 1 है, उसने करेक्ट आंसर किया 105 करेक्ट किया, एंड रॉन्ग कितना किया 15. वेयर जो पर्सन बी है, उसने भी 108 करेक्ट किया, मोर देन पर्सन ए, बट उसने कितना तुक्का मारा, बहुत ज्यादा रॉन्ग किया, 27 रॉन्ग किया, विच इज वाई नेगेटिव मार्किंग है ना. फाइनल स्कोरिंग एक का हो गया 90 एंड शी गॉट सेलेक्टेड, वेयर द पर्सन बी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड बिकॉज हर मार्क इज 81. तो वेरेस पर्सन बी एक्चुअली ज्यादा स्कोर किया है ना पर्सन 1 से. सो ज्यादा स्कोर करना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करते कि आपको कम नेगेटिव मार्क करना है. ठीक है, तो कैसा करके अप्रोच करना है? सी इवन मी पर्सनली, हम बहुत लालची हो जाते हैं व्हेन आई एम इन द जोन ना, एग्जाम के टाइम पे हमको ऐसा होता है कि इसको भी कर लेगा, कि इसको भी कर लेगा, तो सही हो जाने से. सो आई ऑल्सो हैव दैट टेंडेंसी. तो मेरा क्या अप्रोच था प्रीलिम्स में? आई वाज लाइक, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन है ना, सो आई मेड श्योर मार्को तुमको 80 से ज्यादा करके नहीं आना है. सी एंट्रेंस में इट्स नॉट पॉसिबल कि यू विल नो एवरीथिंग, सो आई टोल्ड माई सेल्फ ओवर स्मार्ट नहीं होना है, 80 से ज्यादा नहीं करेगा तुम. बट ऐसा नहीं होता है. आई डिड 85 इन माई प्रीलिम्स. तो ऐसा मेरे जैसा नहीं होना है. लालची मत हो जाओ, अच्छे से उसमें अच्छे से डिसीजन लेना है. फर्स्ट इफ यू आर 100% श्योर, करो उसको, डू दैट क्वेश्चन 100. अगर उसको 50-50 भी है, दो चार आंसर से आप अगर ए बी तो आंसर होगा ही नहीं, आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, बस 2 से चुनना है, तभी भी करो. एंड देयर आर क्वेश्चंस जिसको आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, रैंडम, जिंदगी में नहीं सुना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है. ऐसा होने से उसको स्किप भी करना है, उसको तुक्का नहीं, मेरा जैसा ओवर स्मार्ट नहीं होना है, तुक्का नहीं करना है उसको, तो इट विल गो नेगेटिव ओनली. तो एग्जाम्पल एक देगा, देयर वाज ए क्वेश्चन ड्यूरिंग माय टाइम प्रीलिम्स में, क्वेश्चन था कि वर्ल्ड डिवॉर्मिंग डे. वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट इज वर्ल्ड डिवॉर्मिंग डे? ऑप्शन में लिखा था February 10, March 10, April 10, May 10, ऐसा करके. तो दैट क्वेश्चन लुक्स वेरी इजी है ना, तो मेरा ईगो हर्ट हो गया. अरे इतना कुछ वर्ल्ड हेल्थ डे देख के गया है, वो वर्ल्ड HIV डे, तो लाइक इट लुक्स, द क्वेश्चन लुक्स वेरी इजी, बट जेन्युइनली हमको पता नहीं था आंसर. सो आई वाज प्लानिंग कि
तुक्का मार दो क्या, मार दो क्या, मार दो क्या। आई वॉज थिंकिंग अप्रैल 10 इन माई हेड, बट आंसर वॉज फेब्रवरी 10। तो उसको करके आने से गलती होना था। फिर आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं मार्को, तुमको नहीं आता है ये, छोड़ो ऐसा करके। तो दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना करना है, नेगेटिव करके नहीं आना है वहां पे जाके। तो दिस इज डन। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। नेक्स्ट इज रिवीजन इंपॉर्टेंट है क्या? दिस वन आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन वेल कि रिवीजन करना जरूरी है। अनदर सबका फेवरेट क्वेश्चन इज दी कट ऑफ कितना होता है? सी कट ऑफ चेंजेस, ओके। हम लोग अरुणाचल प्रदेश तो ऑल पूरा एसटी स्टेट है ना, तो एसटी के लिए कट ऑफ ये देखो, नॉर्थ मैंने दे दिया है। नॉर्थ सेट 7 में 80% था, परसेंटाइल था, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल। हाँ, नॉर्थ सेट 8 में 73 परसेंटाइल, नॉर्थ सेट 9 में 66, नॉर्थ सेट अभी का जो रिसेंट में 74। सो इट चेंजेस। अगर सीट ज्यादा है, नॉर्थ 9 में सीट बहुत ज्यादा था, थ्री था ऑल ओवर इंडिया में 3600 सीट था, तो कट ऑफ गिर गया था, 66 था। नॉर्थ से 10 में सीट थोड़ा कम हो गया, तो कट ऑफ भी बढ़ गया। एंड अगर एग्जाम टफ होता है ना, तो कट ऑफ गिरता है, बिकॉज टॉपर टॉपर भी कम स्कोर करता है। तो एग्जाम अगर इजी है तो कट ऑफ भी हाई होता है। तो इट फ्लक्चुएट्स, ओके, देयर इज नो कट ऑफ। जितना डिपेंड्स ऑन कितना आपका एग्जाम कैसे है, कितना टफ है नहीं है, उसके ऊपर में चेंज होते रहता है। आई विल शेयर द पीपीटी लेटर, ओके, ये देख लेना। देन ये तो ये तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि तुक्का नहीं मारना है, कितना अटेम्प्ट करना है, ये भी सबका क्वेश्चन होता है ना। ये तो पहले आप लोग प्रिपरेशन कर लो, फिर उसके बाद कितना अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में क्या अप्रोच करना है, इसका वी विल डू अनदर क्लास। वी आर ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं अभी ना, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, अच्छा, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, सो आई विल गिव वन शाउट आउट टू माय फ्रेंड मिस्टर अंतरिप। तो अंतरिप, उसने ही आपका जो आपने जो सर्वे फॉर्म फिलअप किया ना, अंतरिप इज द पर्सन, ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम निगवेम्स, एंड ऑल्सो ही इज द वन जो पूरा ये सेटअप, जितना भी जो योर सर्वे और ये मीटिंग, आज का मीटिंग भी, टेक्निकलिटीज जितना भी जो पोर्शन है, ही इज द वन हु हैज हेल्प मी। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट। एंड uh, उनका खुद का एक सर्विस है, रिसिकोलॉजी। तो उसमें ही प्रोवाइड्स ऑल दिस सर्विसेज, रिसर्च का। अगर आपको रिसर्च का, इफ यू आर समवन हु इज डूइंग बीएससी या पोस्ट बीएससी भी कर रहे हो, कहीं पे आपका फ्रेंड्स भी कर रहे हो डिसर्टेशन के लिए भी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन कांटेक्ट हिम। मैं उसका नंबर भी आप लोग को दे दूंगी, शेयर कर दूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। तो यू कैन कांटेक्ट हिम। तो ही विल मिनिमम चार्जेस में, बेसिक चार्जेस में ही विल हेल्प यू आउट, डिसर्टेशन वगैरह। ही इज वेरी स्मार्ट, पूरा पीएचडी का भी वो थीसिस वगैरह में ही हेल्प्स आउट। ऑलमोस्ट निगम्स का ऑल द टीचर्स फैकल्टीज को भी इसने हेल्प आउट किया है। तो ही इज अ वेरी स्मार्ट फ्रेंड ऑफ माइन। आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट फॉर हिम। ओके, नेक्स्ट, पीपीटी में भी उसने मदद किया। नेक्स्ट इज, ओके, आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन। आई होप आई वाज एबल टू, जितना बेस्ड ऑन आपका सर्वे में मुझे जो समझ में आया ना, कि मोस्टली आप लोग को प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी के बारे में ही जानना था, तो आई फोकस ऑन दैट ओनली। फिर बाद में जाके सैलरी कैसा है, एम्स में लाइफ कैसा है, वो सबको कभी और दिन हम लोग करेंगे, क्योंकि एक सेशन ज्यादा लंबा होने से ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा एंड यू विल नॉट रिटेन एनीथिंग। तो उससे ज्यादा हम लंबा रखने का मन नहीं था मेरा। तो अभी इट्स ओपन फॉर डिस्कशन। यू कैन, लाइक, एक साथ में सब कुछ नहीं करना, अनम्यूट योरसेल्फ, खुद का वीडियो भी इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ओपन, क्योंकि इसको आई माइट अपलोड इन इट इन यूट्यूब, ओके, क्योंकि सबको फायदा होना है ना, आज हर कोई नहीं आ पाया, ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स। तो इसको आई माइट अपलोड, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वीडियो ऑफ रखना, ऑडियो ऑन रख के आई विल टेकल डाउन योर क्वेश्चंस। 5 मिनट्स में वी हैव टू कंप्लीट। चलो, कुछ अगर पूछना है तो यू कैन स्टार्ट। एक एक करके unmute yourself and ask anything if you want. Am I audible? दी ये हाँ, मतलब स्टडी में मतलब कितना आवर्स करने से अच्छा होगा, मतलब हिसाब से। और आप जो नोट्स पढ़ा था ना, तो जैसे कि सबको मिला के पढ़ने बोल के, तो आप नोट्स बनाने वाला में, जैसे कि आप एमएसएन का पढ़ रहे थे ना, उसका क्या, उसका डायरेक्ट पूरा नोट्स आप फार्माकोलॉजी और कुछ कुछ डिजीज कंडीशन को भी ऐड किया, बोले एक ही नोट बनाया था क्या? ओके, दिस इज, इसका आंसर ये होगा ना, यापू ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यापू राइट। Yes, तो ma'am. यापू हम क्या किया था, फर्स्टली देखो कितना पढ़ना है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरा बेसिक क्लियर था, मेरा बाय गॉड्स ग्रेस मेरा बीएससी के टाइम से थोड़ा बेसिक क्लियर था, तो हमको इतना टाइम नहीं लगा, मेरे पास जरा टाइम भी नहीं था प्रिपरेशन का, 1 महीना ही मेरा हाथ में था।
तो हम शॉर्ट शॉर्ट से बस रिवाइज किए। एंड सपोज आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में, या अभी आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम कम रहता है ना, तो बेस्ड ऑन आपका बेसिक कितना कैसा है और आपके पास में कितना टाइम है, उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन को लेके जाना पड़ेगा। एंड अगर कोई प्राइवेट में, यूजुअली मेरा जूनियर्स लोग भी पूछते हैं ना, दी हम तो प्राइवेट में तो टाइम ही नहीं मिलते, इतना थक जाते हैं हॉस्पिटल ड्यूटी के बाद, आगे नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो माई सजेशन वुड बी थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइनली सोचते कि हम प्रिपेयर करेगा, तो प्राइवेट को मतलब 1-2 महीना के लिए छोड़ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से ज्यादा बेहतर है। एंड रिगार्डिंग द नोट्स ना, तो आई थिंक आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। आपको का जो क्वेश्चन था कितना पढ़ना है, तो इट्स ये सबका अलग अलग होता है, आपके हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपको कितना समझने में टाइम लग रहा है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द नोट्स ना, यापू मैंने क्या किया था, मेजर सब्जेक्ट को तो डिवाइड करके ही रखो, जैसे कि मैथ सर्च का अलग, फाउंडेशन अलग, ओबीजी अलग, ऐसा करके ना, पीडिया ओबीजी और पीडिया को साथ में, कम्युनिटी अलग, साइकेट्री अलग, ऐसा करके तो मैंने रखा था। बट जस्ट दैट जब जो माइनर सब्जेक्ट है, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसका अलग से नोटबुक नहीं बनाया। जैसे कि मैथ सर्च का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मैथ सर्च का एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वो सिस्टम में वो टॉपिक पढ़ने से उसी में हम सीधा उसका, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें डिगोक्सिन का बारे में हम पूरा पढ़ के खत्म कर देगा। तो फार्माकोलॉजी के लिए हमको अलग से बुक बनाना नहीं पड़ा। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज बी कंफर्टेबल, आप लोग के लिए किया है ना, सो यू शुड बी कंफर्टेबल। मैम एक क्वेश्चन। हाँ। तो मैम लाइक हम लोग जब करेंटली पढ़ाई कर रहे थे पोस्ट बेसिक बीएससी, देन इट्स बेटर टू लाइक स्टार्ट, लाइक स्टूडेंट होते हुए स्टार्ट करने से बेटर है ना, लाइक टू प्रिपेयर फॉर नर्सेट और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, लाइक व्हिच वन इज बेटर ऑप्शन? Okay, for that I would just like to say कि if you are studying properly for your post BSc, तो आपका तो एक तीर में दो निशान हो रहा है ना, क्योंकि जो आप पोस्ट बीएससी में पढ़ रहे हो, दैट पोर्शन वही चीज तो नॉर्सिक में भी आएगा, जिसकी की अप्रोच अलग हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। फॉर एग्जांपल आपको उसी टॉपिक का एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा और क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। बट ऐसा नहीं है कि एंटायरली पोस्ट बीएससी का पढ़ाई अलग है और नॉर्सिक का पढ़ाई अलग है, ऐसा नहीं है। जो नर्सिंग में आप बीएससी में, जीएनएम में, पोस्ट बीएससी में जो पढ़ रहे हो, दैट वन ओनली इट विल कम। तो मेरा तो ऐसा ही हुआ ना कि सिंस आई वाज गुड बीएससी के टाइम पे, मैंने अच्छे से पढ़ा, तो हमको इसलिए इतना तकलीफ नहीं हुआ ना प्रिपरेशन के टाइम पे। तो अगर आप पोस्ट बीएससी भी अच्छे से पढ़ेगा या बीएससी भी अच्छे से पढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसका हेल्प मिलेगा आपको प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं होगा कि ये क्या है, कभी नहीं सुना था, तो आपके लिए बस वो रिवीजन जैसा होगा। फॉर मी पर्सनली ऐसा ही था, क्योंकि आई डिडंट हैव मच टाइम, मेरा हाथ में बस जॉब छोड़ के आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी नामसाई। तो मार्च में मैंने रेजिग्नेशन दिया था, उसके बाद अप्रैल 12 तारीख को एग्जाम था, मार्च 12 तारीख को हम वहाँ से रेजिग्नेशन देके नाहरलगुन आए। उसके बाद मेरे हाथ में सिर्फ 1 मंथ था, तो बिकॉज माई बेसिक वॉज क्लियर, उसके मदद उसके लिए लाइक प्रिपरेशन में कम टाइम लगा। तो आई होप माई लाइक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट। मैम ये हेलो यस यस रोशनी, हाँ बोल। ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट अप करेगा ना, लाइक मैम हम जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, इतना सारा है जो हमसे बहुत जानता है, एक बहुत डर डर रहता है एक अंदर में ना कि नहीं होगा हमसे, व्हाट इफ हम इतना खुद को ऐसे टाइम देके बाद में आगे जाके नहीं हुआ है तो क्या करेगा, उसको मतलब कैसे ओवरकम करेगा ना मैम? सी इसके लिए तो हम यही बोलेगा कि हाउ डू यू लर्न टू राइड ए बाईसाइकिल? बाई राइडिंग इट। हाउ डू यू लर्न टू कुक? बाई कुकिंग, है ना। तो आप बैटल फील्ड में नहीं आएगा तो वो कॉन्फिडेंस जो तब तक बूस्ट नहीं होगा जब तक आप बाहर से देख रहे हैं ना। गाड़ी चलाना नहीं आता तो आपको डर लगेगा कि सीखो कि नहीं सीखो, बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग, आप गिरोगे जो भी होगा, बट यू विल लर्न, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। इसीलिए तो लाइक आई एम ट्राइंग टू बी दैट फेमिलियर फेस ना, कि आपको भी ऐसा, हमको देख के ऐसा होना चाहिए ना कि अरे ये भी तो अरुणाचली, इफ शी कैन डू आई कैन ऑल्सो डू इट। वो फेमिलियरिटी के लिए ही हम यहाँ पे है कि अरे अरुणाचली लड़की भी कर रहा है, तो वो फीलिंग आना चाहिए। तो रोशनी, इसके लिए तो यही आंसर है कि आप जितना आप इस चीज में घुसोगे ना, वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जितना आपका आंसर्स अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आपका आंसर सही हो रहा होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो ऐसे ही करके प्रिपरेशन कर करके ही आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा।
तो ऐसा मत सोचो कि एंड आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर सो मेनी, लाइक आई एम आल्सो प्लानिंग कि लेटर ऑन हम आप लोगों को मिलाएगा एक अरुणाचल मीट जैसा जो एम्स में काम कर रहा है, देयर आर सो मेनी एज यंग एज सी माय कलीग। मैंने आई वाज डूइंग एमएससी, मैं तो एमएससी के बाद ज्वाइन किया ना। देयर इज अ कलीग, हर नेम इज मारियम छोटा बहन है, वो तो मेरे से एकदम छोटा है। मारियम जस्ट रिसेंटली बीएससी कंप्लीट करके विद इन 1 ईयर उसको मिल गया। सी इज ओनली 23 24 ऐसा करके अभी वो एम्स गुवाहाटी में मेरे साथ में है। सी इज माय कलीग। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत जानने वाला आदमी लोग ये सब कर रहे हैं ना। तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका जरूर होगा। तो ऐसा नहीं कि एवरेज है तो नहीं हो पाएगा, नहीं, आराम से हो पाएगा। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एनी मोर क्वेश्चन? खत्म, हम लोग का टाइम खत्म होने वाला है, 1 आवर। Ma'am. Hi. हाय हाय। Yes, hello. हाँ हाँ मुमलक, Uh, आई एम एबल टू I हियर यू। just hello. Oh, yeah. Just wanted to ask if having a master's degree gives. Hello, can you hear me? यस यस मुमलक। Okay. So just wanted to ask if having a master's degree gives any like percentage of upper hand as compared to other candidates who enter this nursing officer with just a bachelor's degree. Yes, I think it does because see, for me, I only had the luck factor. I would say I had some luck factor as well. मेरे पास में I only had 1 month, but how I got lucky is that mains के time पे North 8 में बहुत सारा questions came from the entire one section came from psychiatry. तो उसमें मेरा फायदा हो गया। ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन वाज फ्रॉम साइकेट्री। तो बिकॉज आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकेट्री, तो मेरा बहुत हेल्प हो गया। तो जस्ट लाइक दैट इन सम ईयर कभी कभी क्या होता है कि ओबीजी से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो इफ यू आर समवन हु हैज डन योर मास्टर्स इन ओबीजी तो जरूर आपको अपर हैंड मिलेगा। अदर देन दैट इन केस ऑफ पेमेंट एंड ऑल, एमएससी के है तो आपका पेमेंट ज्यादा होगा कि वो सब में तो देयर इज नो बेनिफिट एज सच अभी जॉब में आने के बाद में। बट एग्जाम के टाइम पे ऑफ कोर्स इफ यू हैव डन योर मास्टर्स यू हैव अपर एज इन अ वे कि आपको रिसर्च का भी थोड़ा पता रहता है, प्रिपरेशन थोड़ा इजी हो जाता है। दैट आई वुड से मास्टर्स डिड हेल्प मी। फिर हैविंग सेड दैट दैट डजंट मीन कि बीएससी वाला नहीं कर पाएगा या जेएनएम वाला नहीं कर पाएगा, ठीक है। या मेरा कलीग में जेएनएम वाला भी है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये तो दी तो पूरा मास्टर्स वगैरह कर लिया इसलिए इनका हुआ होगा, नहीं। So many of my friends, they have only completed BSc or they are currently working as nursing officer here and all over India में एम्स दिल्ली में भी बहुत है अरुणाचल। Any Okay, more thank questions? you so much. Thank you मुमलक। मैम हाँ जी। मैम ये प्रीलिम्स में जो ना जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स लोग आते हैं मैम, उसका डायरेक्ट आइडिया क्या करना है? ओके, उसका सी अभी तो एनी बुक में टारगेट हाई में भी एक छोटा सा नॉन नर्सिंग पोर्शन का आता है एंड देन मिशन परिचारिका में आई एम नॉट श्योर। वो तो ना वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपको आराम से बुकलेट जो आप खरीदते हो ना उसमें ही मिल जाएगा। तो उसमें बेसिक्स ही आता है, इंग्लिश भी ऐसा कुछ फैंसी नहीं आता है, बेसिक्स आता है। जीके भी बेसिक्स आता है। मेरे टाइम पे कैसे आया था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो इस एपीजे अब्दुल कलाम, सिंपल सिंपल बेसिक जीके आया था। बेसिक प्रिलिमिनरी मैथ्स आता है। तो उसको ना आप एक दो यूट्यूब चैनल से, फ्री चैनल से एक दो यूट्यूब वीडियो देखने से ही उसमें से हो जाएगा। उसका इतना दिमाग मतलब उसके लिए इतना डरने का कोई बात नहीं है। एंड इट इज ओनली 20 मार्क्स ना, तो उससे ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। एंड प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर, प्रीलिम्स से आपका रैंक डिटरमाइन नहीं होगा। तो प्रीलिम्स के लिए तो दैट स्मॉल हैंडबुक इज इनफ वो नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए। या यूट्यूब में 1 to 2 आवर्स का एक वीडियो देखने से इट विल बी इनफ फॉर यू। मैम एंड जीके जीके मार्किंग इज स्कीम मतलब मार्किंग स्कीम और एक बार बताना तो ठीक है मैम। मार्किंग स्कीम कौन सा मैम मार्किंग आप स्कीम जो है? बोल रहे थे क्वालिफाइंग मार्क्स लेने से हो जाते हैं मैम, देख हमको नहीं समझ करना पड़ता ओके उसमें। ओके, सी ऐसा होता है ना, बेस्ड ऑन कितना सीट, सपोज 2000 सीट है, 2000 सीट है तो 2000 सीट का हिसाब से वो लोग 1:5, सपोज 2000 सीट है तो वो लोग 10,000 कैंडिडेट को मेंस में क्वालिफाई करेगा। तो मेरे टाइम पे फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में 68,000 आदमी एग्जाम दिया था। तो 68,000 से
11,000 क्वालिफाई हुआ टू गिव मेंस। तो एक हर बेस्ड ऑन सब लोग कितना स्कोर किया है ना, सपोज टॉपर टॉपर कितना स्कोर किया उसके हिसाब से एक परसेंटाइल निकलता है। तो एसटी का कट ऑफ सपोज 74 है, तो 74 से अगर आप ऊपर लाया है ना तो आप क्वालिफाई हो जाएगा, आप मेंस में अपियर कर सकेगा। तो एक बेंचमार्क सेट कर दे कि इतना से नीचे आने से यू आर डिस्क्वालिफाइड, एक वो लोग सेट करेगा बेस्ड ऑन सबका सब जितना मार्क्स लिया है उसका एवरेज निकाल के एक सेट करता है। तो वो सेट का ऊपर आप लाने से यू विल बी क्वालिफाइड टू गिव मेंस, उसका नीचे आने से आप क्वालिफाई नहीं होगा। तो वो हर साल चेंज होता है। ओके, तो उसके लिए आई विल डू अनदर थैंक यू मैम। क्लास। ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, वी डोंट हैव टाइम अभी, आई थिंक हो गया है। अंता इट्स ओनली 1 hour क्या? Okay, last question. This will be last question. Then I will complete the session. Anybody wants to ask anything last? Hello, good evening, ma'am. Good evening. मैम एक्चुअली लाइक नॉर्सिट का हर साल पैटर्न जो चेंज होता है, आपको क्या लगता है कि ये बार कैसा होगा? See, patterns change होता है, but the theme remains. मेरा जो for example नॉर्सिट 10 में बहुत सारा पहले नॉर्सिट 8 में for example लेट्स से सेक्रेटरी ज्यादा आया, नॉर्सिट 9 में दे सेट की ओबीजी ज्यादा आया, अभी नॉर्सिट 10 में दे आर सेइंग कि मैथ सर्च ज्यादा हो गया। तो द वो ना थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, बट द कोर जो थीम होता है इट रिमेन सेम। ओके, पैटर्न चेंज होने से भी इस बार भी ईसीजी का क्वेश्चन तो आया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का एबीजी का क्वेश्चन तो फेवरेट है, वो तो आता ही है हर साल। तो द थीम विल रिमेन सेम। तो अगर आप जो प्रॉपर थीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा करके उसमें से थीम निकाल के वो थीम को अच्छे से पढ़ा, तो अगर पैटर्न चेंज भी हुआ तो भी देयर इज लेस चांस कि आप डिस्क्वालीफाई होगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अनप्रेडिक्टेबल ना। वो तो आई कैन नॉट से कि नेक्स्ट में कौन सा ज्यादा आएगा, बट ट्रेंड चेंज होता है। बट ट्रेंड चेंज होने से भी इफ यू हैव प्रिपेयर्ड लाइक प्रॉपर्ली, मेजर सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर्ली कवर किया है तो यू हैव नथिंग टू फियर, आपका हो जाएगा। एंड हम लोग का क्या फायदा, वी हैव एसटी वो ना कोटा है ना हमारा, तो दैट इज अ सेफ्टी नेट। हम नहीं बोले कि उसका मतलब एसटी कोटा है तो नहीं पढ़ाई करेगा, नहीं, दैट इज जस्ट योर सेफ्टी नेट। तो ओके, तो इट्स ऑलरेडी 1 hour। थैंक यू ऑल आप लोग जिसने भी ज्वाइन किया है, एंड आई वुड रियली वांट द फीडबैक ऑल्सो। फीडबैक के लिए आई विल गिव आई थिंक शेयर वन गूगल फॉर्म, ऐसा कुछ करेंगे। एंड इफ पॉसिबल आई विल अपलोड दिस इन यूट्यूब सो दैट जो आज अटेंड नहीं कर पाया, बिकॉज जूम और जो गूगल है ना दे ओनली अलाउ 100 पार्टिसिपेंट्स, तो आई विल अपलोड इट इन यूट्यूब सो दैट जो नहीं भी अटेंड कर पाया उसका भी फायदा हो जाए। एंड नेक्स्ट सेशन किस पे आप लोग को चाहिए वो भी लाइक मे बी आई विल आस्क। दीदी जी, यूट्यूब चैनल लिंक शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने दोस्त को भेज सकें। ओके, नहीं अभी तो नहीं बनाया है, आई विल हैव टू मेक वन, उसके बाद लेट्स सी। ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू जी, एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके, Thank जी, you, thank ma'am. you, Good night. Thank you, good जी, night, ma'am. good night। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. जी। Thank you, ma'am. हेलो, हाँ हाँ, ये एसटी कोटा मतलब कितना सीट रिजर्वेशन होता है एसटी कोटा में? वो फिक्स नहीं होता है, वो साल कितना सीट है उसके हिसाब से चेंज होता है। सपोज और जी, दो ओवरऑल 2000 सीट है तो 2000 सीट में से एसटी कितना वो इंस्टीट्यूट बताता है, सपोज कितना कितना ऐसी सीट उन लोगों को चाहिए ना, तो अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है, देयर इज नो फिक्स थिंग एज सच। मैम लास्ट क्वेश्चन, ये मैम प्रीलिम्स और मेंस में मैम क्वेश्चन पैटर्न जो सेम ही रहता है क्या, या फिर उसमें फिर कुछ मेंस में कुछ अलग थोड़ा हो जाता है? नहीं, इट्स सेम ओनली, इसलिए हम बोले ना पीवाई क्यों करो। आपका होमवर्क है कि आप पीवाई क्यों करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सेम होता है ना डिफरेंस, देयर इज नॉट इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे बोलता है कि मेंस का क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है प्रीलिम्स के कंपेयर में, ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, बट आई पर्सनली डोंट लाइक डिडंट फील लाइक इट, हमको तो सेम ही लगा है, तो देख लेना, इसलिए पीवाई क्यों करो, ठीक है। तो इट्स ऑलरेडी 1 hour, आई विल एंड द सेशन। मेरा फ्रेंड ने